तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बर्न। बर्न का सबसे पहले वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द बर्न। तो बर्न इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो सिंस ड्यू टू बर्न क्या हो रहा है, डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज जो भी टिश्यू का परफ्यूजन है, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड। ठीक है, दैट इज व्हाई further on there is development of this necrosis, coagulative necrosis, which is caused by the heat transferred from the source to the body. So obvious है कि due to burn there is development of the heat and it is transferred from the source जहाँ से burn injury हो रहा है, that is from the source to the body, and which is causing the alternation of these tissue perfusion. जिसके बाद क्या हो रहा है, there is development of the necrosis of that part, which is nothing but a coagulative necrosis. तो किस टाइप का नेक्रोसिस होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो बर्न इज अ टाइप ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द बॉडी। सो सम ऑफ द ethical aspect that you should keep in mind in case of the burn patient, or in case of the medical legal aspect that you should know in mind before managing the burn patient। तो याद रखना कि कोई भी एक बर्न पेशेंट आता है या आती है, तो उसमें सबसे पहले वी हैव टू इन्फॉर्म, उसमें क्या होता है, आईपीसी केस हो जाता है इन दैट पेशेंट। क्योंकि जो सारे पेशेंट बर्न पेशेंट आते हैं कि वी द फिजिशियन, वी द डॉक्टर्स डोंट नो वेदर इट इज it can be a homicidal burn or accidental burn, or it can be a suicidal burn. ठीक है, we don't know about the case. So uh, before handling this case you should must inform the police, ठीक है, before managing the burn patient, because पता नहीं होता कि हमें ये जो burn patient हुआ है whether it is accidental or homicidal or a suicidal attempt। तो उसमें क्या होता है, देखो, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हेनेवर अ फीमेल और द प्रेग्नेंट पेशेंट अराइव्स विद द बर्न। तो इट कम्स अंडर द मेडिकल लीगल केसेस, द बर्न पेशेंट। ठीक है, देन कंसेंट फॉर द हाई रिस्क, you must remember that if any high risk patient is there greater than 30 degree percentage of the burn, so we will discuss in further कितना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है बर्न पेशेंट में। तो कंसेंट ले लेना है, दैट इज हाई रिस्क कंसेंट, यू मस्ट हैव टू टेक द हाई रिस्क कंसेंट, बिकॉज बाद में पेशेंट या पेशेंट पार्टी बाद में आकर ये ना बोले कि मतलब मैनेज अच्छे से नहीं हुआ, वेदर यू आर मैनेजिंग इन नर्सिंग होम और सम हॉस्पिटल। ठीक है, तो बर्न शुड बी असेस्ड वेदर इट शुड बी वेदर इट इज एक्सीडेंटल और होमिसाइडल, and the relatives should always be informed about the relatives should be informed about the duration of stay, problems, and repeated surgeries. So we have to inform the relatives. In patient with severe burns who is likely to die, okay, who is, if you are suspecting any patient, any burn patient who is like major burn, okay, then you have to take the dying declaration note, okay, and it should be arranged, and you have to take the dying declaration note, and you have to ask the patient whether there was any suicidal attack, okay, whether it was an homicidal or accidental. So you have to ask the patient if he or she is able to answer the question. Otherwise you have to take the dying declaration from the patient or from the relative. Okay, cost of therapy, long of duration of stay, and the cosmetic problems should be informed to the relatives. So everything we have to inform, or we have to inform to the relatives regarding the condition of the patient। ठीक है, वी हैव टू इन्फॉर्म दी रिलेटिव्स, और दी जो भी पेशेंट के साथ आया है, वी हैव टू इन्फॉर्म दी एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, देन वी विल इसके बाद हम लोग आते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्न। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न, हाउ द बर्न कैन ऑकर। ठीक है, देयर कैन बी अ थर्मल इंजरी, और देयर कैन बी, हाँ हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो, आवाज ब्रेक होके आ रहा है बीच बीच में, आवाज ब्रेक हो रहा है। वैशाली परवीन, क्लियर है वॉइस? हेलो, हाँ भैया। अभी क्लियर है? नहीं, अच्छा एक सेकंड, पूरा नेट का इशू है। ठीक है, अभी आ रहा है क्लियर? अभी क्लियर आ रहा है वॉइस? हेलो, नहीं ब्रेक हो रहा है अभी।
ओके, अभी अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, है। तो ठीक है, मैं यहाँ से फिर से बोल रहा हूँ। सो इन दैट केस, अच्छा हम लोग टाइप्स ऑफ बर्न डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इफ वॉइस अगर ब्रेक करता है तो तुम लोग मैसेज कर देना, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बर्न देख रहे थे, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न। सो देयर कैन बी थर्मल इंजरी बर्न, ठीक है। थर्मल इंजरी के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरी। इन थर्मल इंजरी में क्या आता है? स्कैल्ड, ठीक है। देन फ्लेम बर्न्स, फ्लैश बर्न्स एंड कॉन्टैक्ट बर्न्स। तो ये आता है थर्मल इंजरी के अंदर। तो स्कैल्ड बर्न्स क्या होता है? स्कैल्ड बर्न्स बेसिकली जो सारा बेसिकली स्टीम, द हॉट स्टीम की वजह से अगर कोई बर्न होता है, देन वी कॉल इट एज स्कैल्ड, ठीक है। तो स्पिलेज ऑफ द हॉट लिक्विड्स और बेसिकली स्टीम, कोई स्टीम बर्न हो उसकी वजह से स्कैल्ड होता है, ठीक है। फ्लेम बर्न्स, देन फ्लैश बर्न्स ड्यू टू एक्सपोजर टू नेचुरल गैस, अल्कोहल और कंबस्टेबल लिक्विड्स। जो सारा मतलब जो सारा बर्न कराने के लिए जो सारा लिक्विड जो ऑकर करता हो, लाइक नेचुरल गैस, अल्कोहल विच आर फ्लेमेबल, ठीक है। तो ये सारे फ्लैश बर्न्स कराते हैं। कॉन्टैक्ट बर्न्स, तो कॉन्टैक्ट विद द हॉट मेटल्स, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स। तो कॉन्टैक्ट बर्न्स ड्यू टू सम हॉट मेटल्स अगर टच हो गया है और ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट बर्न्स। देन इलेक्ट्रिकल बर्न्स वो भी हो सकता है। केमिकल बर्न्स लाइक डिफरेंट एसिड्स एंड एल्कलीज की वजह से केमिकल बर्न हो सकता है। अगर ऐसा कोई सुसाइडल या फिर कोई ऐसा पी लिया हो कोई एसिड, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दैट कैन कॉज केमिकल बर्न्स। कोल्ड इंजरी ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट, मतलब जो सारे कंट्रीज जहाँ पे मैक्सिमम ये फ्रॉस्ट बाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे नेगेटिव माइनस में जहाँ टेम्परेचर रहता है, दैट कॉजेस कोल्ड इंजरी बर्न, ठीक है। कोल्ड इंजरी आता है, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट बाइट। आयनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। देन सन बर्न्स, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट जो हमने देखा है विच ऑकर्स इन कोल्ड कंट्रीज also also cognitive necrosis कराता है due to caused by extreme degree of cold। जहाँ पे cold countries, जहाँ पे माइनस में जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, that can cause frostbite। Scald is a burn which is caused by moist heat or steam, ठीक है, उसको बोलते हैं scald। then electrical burns जैसे हम लोग देखते हैं due to some high tension injury or the low tension injury, ठीक है, electrical burns, ठीक है। तो जो हाई टेंशन वायर्स वगैरह होते हैं, that causes जहाँ पे more than 1000 volts करंट सप्लाई होता है, दैट कॉजेज हाई टेंशन इंजरी। लो टेंशन इंजरी, वहाँ पे क्या होता है, लेस देन 1000 वोल्ट के अंदर हम लोग लो टेंशन के अंदर डालते हैं क्राइटेरिया, एंड हाई टेंशन इंजरी के अंदर मोर देन 1000 वोल्ट्स लगता है। तो ये सब जस्ट थोड़ा क्राइटेरिया है, बस एक माइंड पे ये सब पॉइंट्स रखो, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मे बी ड्यू टू द करंट इटसेल्फ कॉजिंग इंटेंस डैमेज ऑन द टिश्यूज अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है, हाई टेंशन इंजरी से देयर कैन बी कॉज or there can be intense damage on the tissues, ठीक है। फ्लैश इंजरीज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से अप टू 4000 डिग्री सेल्सियस में ड्यू टू फ्लैश इंजरी हो सकता है। फ्लेम इंजरी और सम ट्रॉमेटिक इंजरी लाइक फ्रैक्चर्स एंड इंटरनल ऑर्गन इंजरी कैन आल्सो ऑकर, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ डीप बर्न, always a major burn. There is wound of entry and wound of exit. So in any case of traumatic injury, there must be a present of any wound of entry, मतलब एक wound of entry रहेगा and there will be a wound of exit, ठीक है। जस्ट एक देख लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम। केमिकल बर्न्स के अंदर क्या क्या आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन केमिकल बर्न्स लाइक सब इन केमिकल बर्न्स में क्या होता है, जो सारे पेशेंट जो केमिकल इंटेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, दैट कॉजेज द एसिड बर्न्स ऑकर इन द जीआईटी मिल। जो क्या होता है, जो सारे एसिड रहते हैं, इट गोज इनटू द स्टोमक, एंड जो स्टोमक पे क्या होता है, इट कॉजेज द गैस्ट्राइटिस, inflammation of the gastric mucosa of the stomach, and further on there is stenosis of the pylorus part of the stomach, ठीक है। वहां पे क्या होता है, pylorus part of the stomach का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और स्टेनोसिस हो जाता है, आस्ते आस्ते वो ट्रैक नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर ऑन gastritis and acid reflux देखने को मिलता है in those kind of patients। and what are the acids that causes these problems, like the formic acid or the hydrofluoric acids, which are hydrofluoric acid is one of the most fatal acid, is the most fatal if the patient consume this acid, ठीक है। और if a person consume this acid, जिसके वजह से क्या होता है, severe gastritis and further on it leads to pyloric stenosis। further on क्या होता है, due to intake of the high or intake of the acid causes the condition known as metabolic acidosis। pH levels क्या होता है, further on बहुत reduce होने लगता है,
and further on it leads to metabolic acidosis condition, further on leads to renal failure and respiratory distress also, and further on hemolysis. ठीक है, तो how we manage these acidemia or metabolic acidosis? We give the patient IV sodium सोडियम बाइकार्बोनेट. तो एसिड को बेस से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का IV ड्रिप हम लोग लगाते हैं पेशेंट को इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एसिडेमिया who are consuming this acid. ठीक है. Then alkali burn occur. Also alkali burn भी होता है which occurs in the oral cavity esophagus which leads to multiple esophagus structure. So there is formation of the stricture formation due to intake of the alkali, of any alkali like sodium hydroxide, lime, potassium hydroxide and bleach are the common alkalis involved. तो ये सारे alkali का बस देख लो नाम क्या क्या होता है that causes these problems, and they cause saponification of fat, fluid loss, release of alkali proteinates and hydroxide ions which is toxic. तो ये तो important नहीं है, जो important है वो अभी हम लोग पढ़ते हैं, that is the classification of burn. ये important है. तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्न, राइट डाउन इज क्लासिफिकेशन, इज पैथोफिजियोलॉजी, इट्स क्लिनिकल फीचर्स बोथ लोकल एंड सिस्टमिक, एंड हाउ यू आर मैनेजिंग दोस बर्न पेशेंट, एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बर्न. तो ये क्वेश्चन एज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन सेट होता है. तो लेट अस सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न कैन बी डिवाइड और कैन बी divide like depending upon the percentage of burn. ठीक है, it can be divided depending upon its percentage of burn and depending upon the thickness of the skin involved. कितना thick skin का involvement हुआ है, तो वैसे एक divide हो रहा है criteria, and what is the mean percentage of the burn. तो depending upon the percentage of burn, it can be mild, moderate and severe, and depending upon its thickness of the burn, it is further divided into two types. Like एक होता है एक partial thickness burn, जहाँ पे क्या होता है बर्न की वजह से, जहाँ पे पूरा लाइक स्किन जो इन्वॉल्वमेंट है, जस्ट सुपरफिशियल लेयर इज इन्वॉल्व, लाइक द जो एपिडर्मिस वाला लेयर. बट इन केस ऑफ फुल थिकनेस बर्न, जहाँ पे एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मिस लेयर, फर्दर ऑन सबक्यूटेनियस लेयर इज इन्वॉल्व, एंड फर्दर ऑन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व्स और द वेसल्स. ठीक है, दैट इज नोन, दैट इज द कंडीशन ऑफ द फुल थिकनेस बर्न. ठीक है. फर्दर ऑन द पार्शियल थिकनेस बर्न क्या होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप थिकनेस बर्न. ठीक है, दो क्राइटेरिया में होता है, एक सुपरफिशियल एंड एक डीप थिकनेस बर्न. ठीक है. और नेक्स्ट उसका सब और एक पार्ट है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस इट कैन बी फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न. So you have to understand when the patient is coming, like patient is presenting, so which degree burn is involved, and depending upon that degree you have to manage the case. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे क्लासिफाई हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द बर्न. ठीक है. तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ बर्न, फर्दर ऑन वी आर अंडरस्टैंडिंग इट कि माइल्ड कब बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे एंड मेजर कब बोलेंगे. Mild कब बोलेंगे, when there is a partial thickness burn which is less than 15%, or in adults which is less than 10% in children. ठीक है, मतलब 15% in case of adult and 10% in case of children. Then we call it as partial thickness, and we are concluding under the mild. ठीक है, mild thickness burn or the mild burn. इसके अंदर हम लोग criteria set करते हैं. Then full thickness burn हम लोग कब बोलते हैं, when there is less than 2% of burn. बर्न होगा और फुल थिकनेस होगा बट इट इज लेस देन 2%. ठीक है. देन एंड कैन बी ट्रीटेड इन आउट पेशेंट पेशेंट्स. तो ऐसा कोई पेशेंट हो जिनमें हम लोग लाइक इजीली हम लोग मैनेज कर सके, जस्ट ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हुआ हो स्किन का, तो वो माइल्ड के अंदर देंगे. मॉडरेट के अंदर क्या देते हैं, मेनली जो 15 से 25% बर्न हो. ठीक है, लेस देन 15% हम लोग माइल्ड में दे रहे हैं, बट अगर 15 से क्रॉस करता है 50 to 25% ऑफ बर्न, ठीक है, अभी हम लोग इसको मॉडरेट के अंदर क्राइटेरिया में रखते हैं. देन थर्ड डिग्री बर्न भी रखते हैं मॉडरेट के अंदर, बट व्हेन इट इज बिटवीन 2 to 10 डिग्री बर्न्स. ठीक है. बट व्हेन द थर्ड डिग्री बर्न इज ग्रेटर देन 10% or 10% or greater than 10%, then we are keeping it under major burn or severe burn. ये सारे क्राइटेरिया जस्ट ये माइंड पे रखना है कि कौन सा क्राइटेरिया किसके अंदर आता है. And the burns which are not involving the eyes, ear, face, hand and 1 minute. Okay. तो हम लोग इसको देखो मॉडरेट में हम लोग क्या रखते हैं, देखो बर्न which are not involving the eye, ear, face, hand and feet and perineum. तो बर्न
जो इन्वॉल्व नहीं करता है आई, ईयर, फेस, हैंड, फीट एंड पेरिनियम, तो उसको हम लोग मॉडरेट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर मान लो ये इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज आई, ईयर, फेस, हैंड, फीट एंड पेरिनियम, देन वी आर कीपिंग इट अंडर द मेजर। देखो ये पॉइंट कहाँ लिखा है यहाँ, द बर्न्स विच आर इन्वॉल्विंग द आईज, ईयर, फीट, हैंड एंड पेरिनियम, वी आर कीपिंग इट अंडर द मेजर और सीवियर बर्न। ठीक है, तो ये सब इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये सब बहुत लाइक सेंसिटिव पार्ट है, दैट इज वाई अगर यहाँ का इन्वॉल्वमेंट होता है देन वी आर कीपिंग इट अंडर मेजर बर्न और सीवियर बर्न। ऑल्सो द इनहेलेशनल बर्न्स, जो सारे इनहेलेशन बर्न्स होते हैं, we are keeping under the major burn because inhalation burns is very much fatal. ठीक है, and electrical burns भी हम लोग major के अंदर ही डालते, that is comes under the severe burn. तो burn with fractures or major mechanical trauma we are keeping it under major burn. ठीक है, then अब हम लोग आते हैं depending upon the thickness of the skin. ये important है कि depending upon its thickness of the skin involved कि जो डिग्री है, that is first, second, third and fourth degree, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर क्या होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर दैट वी विल गेट इन केस ऑफ व्हेन द बर्न इज ऑकरिंग, व्हेन द बर्न होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस द थिकनेस ऑफ द स्किन। तो फर्स्ट डिग्री जब होगा तो उसमें क्या फीचर्स मिलेगा, ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न द एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस लुक्स रेड एंड पेनफुल। ठीक है, रेड होगा, पेनफुल होगा, बट वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी ब्लिस्टर। अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है वी आर कीपिंग इट अंडर सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, तो देर इज ओनली सुपरफिशियल बर्न और द एपिडर्मल लेयर इज इन्वॉल्व एंड इट लुक्स लाइक रेड एंड पेनफुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इट विल फर्दर ऑन बॉडी फिजियोलॉजिकली इट विल ट्राई टू हील इट अप बाय formation of by epithelialization. ठीक है, by formation of this epithelial layer, body will try to heal that skin part and there will be no scarring, कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न में। ठीक है, और ये जो हील होता है मेनली टेक्स 5 to 7 days, तो बहुत क्विकली हील होता है एंड इट टेकिंग 5 to 7 days ओनली। बट एज आई सेड कि जहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है एंड वो क्या होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, साथ में क्या होगा, देयर विल बी मॉटेल्ड, रेड और पेनफुल होगा पेशेंट। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में उतना पेनफुल नहीं होता है जितना सेकंड डिग्री बर्न में पेनफुल होता है एंड इट हील्स बाय एपिथेलाइजेशन एंड इट टेक्स 14 to 21 days, नियरली 2 to 3 weeks लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में नॉर्मली 1 week लगता है टू हील। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, स्कैरिंग किस में फॉर्म होता है, अब ये सेकंड डिग्री जो बर्न है ये फर्दर ऑन दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न और एक होता है डीप सेकंड डिग्री बर्न। तो सुपरफिशियल जो सेकंड डिग्री बर्न होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा हील थोड़ा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू द डीप सेकंड डिग्री बर्न एंड इट कॉजेज सम पिगमेंटेशन, जहां पे बर्न हुआ है वहां पे थोड़ा पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का। ठीक है, बट यहाँ पर भी स्कार फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्कार फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्कार फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इन केस ऑफ डीप सेकंड डिग्री बर्न। ठीक है, यहाँ पे स्कैरिंग होता है, देखो burn heals and causes scarring and pigmentation। पिगमेंटेशन तो हो ही रहा है, सुपरफिशियल में था और यहाँ पर भी पिगमेंटेशन होगा और यहाँ पे स्कैरिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर थर्ड डिग्री बर्न में मिलता है, दैट इज इस्चर फॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मली जब देखो तुम लोग नोटिस किए होगा इन केस ऑफ बर्न पेशेंट जो सीवियर जिनका बर्न हुआ है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। मान लो कहीं भी बॉडी पार्ट में बर्न हुआ है वो जगह क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड वो जगह पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, और वो जगह थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाता है, टीनेचर्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्चर फॉर्मेशन। ठीक है, मेनली ये कब मिलता है, इन केस ऑफ थर्ड डिग्री बर्न द अफेक्टेड एरिया इज चार्ड, पार्चमेंट लाइक, पेनलेस होता है। व्हाई पेनलेस, बिकॉज इन थर्ड डिग्री बर्न देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व, जो भी नर्व इन्वॉल्वमेंट है उस पार्ट का जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे क्या होता है, नर्व इज गेटिंग हैम्पर्ड और डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट नर्व एंड दैट इज व्हाई यह पेलनेस है, पेशेंट को दर्द ही महसूस नहीं होता है, पेलनेस होता है, सेंसिटिव भी नहीं रहता है एंड फर्दर ऑन इट रिक्वायर्स क्या रखता है वहाँ पे, सिंस वहाँ पे क्या हो रहा है, इस्चर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई ये इस्चर को हमको इम्पोर्टेंट है, ये जो वहाँ पे इस्चर हुआ है, कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, ये जगह को हमको इस्चरेक्टोमी करके रिमूव करना है, बिकॉज अगर हम इसको इस्चर को रिमूव नहीं करें ड्यू टू प्रेशर, ये इस्चर क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्चर प्रोवाइड करता है, स्टिफ कर देता है जगह को, और फर्दर हम उसके आसपास में जितने सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, वेसल्स है, ये क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है,
प्रेशर क्रिएट करता है, या कोई भी सामने का कोई भी वेसल्स हो, ऑर्गन्स हो, वहां पे प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्चर। और फर्दर ऑन क्या करता है, वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट करता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, यहाँ पे जो भी नियर बाई वेसल्स है, ऑर्गन्स है, वहां पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस सिंड्रोम नोन एज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर रिमूविंग द, हमको क्या करना है, इस्चर को रिमूव करना है बाय इस्चरेक्टॉमी। तो इस्चरेक्टॉमी ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रोसीजर है, हाँ जहाँ पे इस्चर हुआ उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इट इज अ टेक्निक जहाँ पे हम लोग को बहुत मैनुअली इस्चर को रिमूव करना है, और तुरंत रिमूव नहीं करना है, वी हैव टू टेक टाइम। और उसके बाद हमको इस्चर को रिमूव करना है। हम लोग आके देखेंगे कि कैसा स्टेप है, हाउ टू रिमूव दैट इस्चर। नॉर्मली क्या करते हैं, इस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्सिलरी इंसिजन प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये इस्चर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जस्ट अभी के लिए इतना ही याद रखो कि 3rd डिग्री बर्न में इस्चर का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे तुम लोग नोटिस भी किए होगे कि मान लो कोई अगर हैंड या पाम में इंजरी बर्न हो जाता है, फर्दर वो जगह क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो नथिंग बट इस्चर फॉर्मेशन है। ठीक है, दीज वोंड मस्ट हील बाय रीएपिथेलाइजेशन फ्रॉम द वोंडेज। तो इसके बाद आते हैं 4th डिग्री बर्न। 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, व्हेन देयर इज अंडरलाइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस मसल्स एंड बोन। तो बोन तक जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है, तो होता है 4th डिग्री बर्न। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ वी आर सेइंग कि 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री बर्न कब हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं द पार्शियल थिकनेस बर्न एंड द फुल थिकनेस बर्न। तो पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर आता है सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, तो पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या होता है, फर्स्ट इट इज आइदर फर्स्ट, सेकंड और 2nd डिग्री बर्न, या फर्स्ट और 2nd डिग्री बर्न तक हुआ, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस एपिडर्मिस, फर्दर ऑन जस्ट उसका डर्मिस लेयर जस्ट सुपरफिशियली जो इन्वॉल्व हुआ वो होता है पार्शियल थिकनेस बर्न। और वहां पे पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, देयर इज अ पेनफुल रेड एंड और विथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है पेशेंट का जहाँ पे बर्न हुआ है। एंड व्हेन फुल थिकनेस बर्न कब होगा, व्हेन इट इज इन्वॉल्विंग the full, like deep involving the all the layers of the skin। ठीक है, एंड बेसिकली जो 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री बर्न्स आर दी फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, तो पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर आता है एक सुपरफिशियल डीप वाला। तो डीप वाला में क्या होता है, इन केस ऑफ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न there is involvement of or there is partial involvement of the nerve in that stage। and यहाँ पे क्या होता है, healing by mainly hypertrophic scar formation। ठीक है, हम लोग बाद में जाकर पढ़ेंगे कि दिस हीलिंग के बारे में, व्हाट इज हाइपोट्रोफिक स्कार एंड व्हाट इज किलॉइड फॉर्मेशन। तो ये एबनॉर्मल हीलिंग होता है, ये काइंड ऑफ। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि एबनॉर्मल हीलिंग होता है व्हिच इज नोन एज हाइपोट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, तो इट कम्स अंडर द डीप थिकनेस बर्न, इसका कैरेक्टर है। डीप मींस पार्शियल थिकनेस होगा, ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नर्व्स आर गेटिंग पार्शियली डैमेज। फुल्ली डैमेज कब होगा, व्हेन देयर इज फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, एंड हाइपरट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो ये सर हमारा क्या क्लासिफिकेशन, अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ये बर्न होने से क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है। तो देखो, बर्न पेशेंट में सबसे पहले क्या होता है कि, तो जैसे मैंने बोला कि, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया कि जैसे ये हाइपोट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो ये जो स्कार फॉर्मेशन क्या करता है ना, फर्दर ऑन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्चर ड्यू टू इस एबनॉर्मल स्कार फॉर्मेशन, इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्चर इन द स्किन, जिसकी वजह से स्किन जो होता है वो स्टिफ हो जाता है। एंड देयर इज थिकनिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी सराउंडिंग एरिया अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, फर्दर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांसेस बहुत रहता है। ठीक है, देन हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी की वजह में क्या चेंजेस आ रहा है ड्यू टू बर्न। तो बेसिकली हम लोग को ये बताया कि इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, देयर इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, मान लो कोई भी स्किन में बर्न हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सारे हमारे बेसिकली जो स्किन है वहां पे जितने सारे परफ्यूजन होते थे, तो वो परफ्यूजन हैम्पर होता है, इट कॉजेज हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से जैसे हम लोग ने शॉक में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किन के अंडरलाइन जो परफ्यूजन जो मैकेनिज्म नॉर्मली जो हो रहा है, वहाँ बर्न की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैपिलरी परमिबिलिटी है इट इज गेटिंग हैम्पर्ड एंड देयर इज रिलीज ऑफ दिस वेसोएक्टिव पेप्टाइड, जिसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी जो परमिबिलिटी है इट इज गेटिंग हैम्पर्ड। और जो
ये है जो कैपिलरी जो परमेबिलिटी जो हैम्पर्ड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है। तो जो बर्न पेशेंट होता है उनमें सबसे पहले क्या प्राइमरी मैनेजमेंट, बहुत सारा फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें डिहाइड्रेशन उस बर्न पेशेंट में बहुत होता है, बहुत। तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है, यहाँ जो कैपिलरी का जो परमिलिटी है, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड, एंड देयरफॉर देयर इज अ लॉस ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लूइड व्हिच इज कॉजिंग हाइपोवोलेमिया, ठीक है। अब हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या होगा, जो हमारा जो कार्डिक जो आउटपुट है, जो कार्डिक का जो लोड है, ड्यू टू इस हाइपोवोलेमिया, बिकॉज बॉडी में मतलब फ्लूइड नहीं है, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड, एंड फर्दर ऑन देयर इज डिक्रीज इन मायोकार्डियल फंक्शन। तो हार्ट का जो फंक्शन होगा ये गेटिंग डिक्रीज। तो बर्न की वजह से देखो तुम लोग क्या हो रहा है, कैपिलरी परमिलिटी हैम्पर्ड हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, एंड फर्दर ऑन जो रेनल जो आउटपुट होगा वो भी कम होगा, बिकॉज ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, एंड फर्दर पेशेंट प्रेजेंट विद ओलिगोयूरिया, जिसके से फर्दर ऑन किडनी पे डैमेज आस्ते आस्ते होने लगता है, रेनल का भी ब्लड फ्लो कम होने लगता है, बिकॉज ड्यू टू इट्स हाइपोवोलेमिया, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। फर्दर ऑन क्या होता है कि जो पल्मोनरी में जो पल्मोनरी जो एरिया है हमारा लंग्स वाला पार्ट, उसमें जो ड्यू टू इट्स हाइपोवोलेमिया, फर्दर ऑन वहां पर भी ऑल्टर्ड होता है, देयर इज आल्सो हैम्पर ऑफ दिस पल्मोनरी पार्ट, और देयर इज पल्मोनरी रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉजिंग पल्मोनरी एडिमा। तो फर्दर ऑन क्या देखने को मिलता है कि ड्यू टू इट्स हाइपोवोलेमिया, मेन कारण हाइपोवोलेमिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्डिक के एरिया में क्या हो रहा है, डिक्रीज आउटपुट हो रहा है, रेनल ब्लड फ्लो में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद ओलिगोयूरिया, ठीक है। देन जो पल्मोनरी का जो नॉर्मली जो पल्मोनरी मैकेनिज्म चलता था, इट इज गेटिंग हैम्पर्ड, फर्दर वहां पे रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वहां पे पल्मोनरी एडिमा होता है, एडिमा की वजह से क्या होता है, फर्दर ऑन वहां पे इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। Then patient present with the severe inflammatory response syndrome or a SIRS, और सेप्टिसेमिया उन पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फर्दर ऑन देयर इज मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, बिकॉज पेशेंट क्या हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया, फर्दर ऑन इसमें इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई हो गया, बिकॉज सारा स्किन जो है सारा वो एक्सपोज है, ठीक है, स्किन एक्सपोज है, जिसमें क्या हो रहा है, एक तो हार्ट में कार्डिक आउटपुट क्या हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्दर ऑन जो रेनल है, रेनल का ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, एंड देन फर्दर ऑन मेरा जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो ऑकर हो रहा है, जिसके से पल्मोनरी एडिमा हो गया एंड उसमें इन्फेक्शन बढ़ गया। उसके वजह से क्या हो रहा है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट हो रहा है, किडनी हो रहा है, ठीक है, देन लंग्स हो रहा है मेरा। तो फाइनली क्या होता है, पेशेंट मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में चला जाता है, पेशेंट को मैनेज करना काफी यहाँ से क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट बर्न से नहीं मर पाता है, पेशेंट कितना इन्फेक्शन से मर जाता है, ठीक है। बर्न वाले पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत ही हाई रहता है ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जैक्सन बोल के एक डॉक्टर या साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया अबाउट दी बर्न जोन, 3 जोन यहाँ पे बताया। तो एक्चुअली जो जैक्सन नाम के जो साइंटिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, बॉडी को एक 3 जोन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें ये बताया है कि बर्न का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है बॉडी में। तो देखो 3 जोन बताया है, एक जो अंदर की तरफ होता है, दैट इज द जोन ऑफ स्टेसिस, ठीक है। सॉरी, जो अंदर का जो जोन होता है दैट इज नोन एज जोन ऑफ कोआगुलेशन, ठीक है, ये वाला हिस्सा। उसके ठीक बाहर में क्या होता है, जोन ऑफ स्टेसिस, और उसके ठीक आउटसाइड में जोन ऑफ हाइपरेमिया, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है बर्न क्या होता है, ड्यू टू इट्स कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग से हाइपरेमिया से पढ़ते हैं, जोन ऑफ हाइपरेमिया जो बाहर का लेयर में, ठीक है, बॉडी के जो बाहर वाला हिस्सा है, जोन ऑफ हाइपरेमिया जो हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो हाइपरेमिया मीन्स क्या होता है, मेनली जो जब बॉडी जब रेडिश देखने को मिलता है ड्यू टू बर्न की वजह से, बॉडी में जब रेडिश ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, इट इज नथिंग बट द जोन ऑफ हाइपरेमिया। तो इट इज द आउटर मोस्ट जोन। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो टिश्यू का जो परफ्यूजन है, टिश्यू का परफ्यूजन है वो मेंटेन है, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग बॉडी में टिश्यू का परफ्यूजन अगर हम लोग उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब ये उतना ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, जितना खराब जोन ऑफ कोगुलेशन है उतना जोन ऑफ हाइपरेमिया खराब नहीं है, ठीक है। तो इन दिस पेशेंट, इन केस ऑफ अगर जोन ऑफ हाइपरेमिया में क्या होता है, मेनली चेंजेस यहाँ पे क्या होता है, द टिश्यू हियर विल इनवेरिएबली रिकवर अनलेस देयर इज सीवियर सेप्सिस प्रोलॉन्ग हाइपोपरफ्यूजन। इस जोन ऑफ हाइपरेमिया में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट सीवियर स्टेज में नहीं जाता है जब तक अगर जो पेशेंट है जोन ऑफ हाइपरेमिया में है, क्योंकि जब तक अगर वहां पे सेप्सिस नहीं डेवलप होता है या हाइपर परफ्यूजन ज्यादा डेवलप नहीं होता, तब तक पेशेंट उतना क्रिटिकल नहीं होता है,
ठीक है। जोन ऑफ हाइपरमीनिया, अगर मान लो कोई पेशेंट अगर जोन ऑफ हाइपरमीनिया स्टेज में है तब पेशेंट उतना क्रिटिकली सीवियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको जस्ट टिश्यू परफ्यूजन ही हमको मेंटेन करना है। अगर मेंटेन हो जाए तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर आता है जोन ऑफ स्टैसिस, ये इसके बीच वाला हिस्सा, ठीक है, जोन ऑफ स्टैसिस। तो जोन ऑफ स्टैसिस कहते हैं द सराउंडिंग ऑफ जोन ऑफ स्टैसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। अब जोन ऑफ स्टैसिस में क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है। This tissue in this zone is potentially salvageable. The main aim of burn resuscitation is to increase the tissue perfusion. तो यहाँ पे जो जोन ऑफ स्टैसिस में जो टिश्यू परफ्यूजन घट रहा है, जस्ट उसको हमको क्या करना है, इसमें भी अगर टिश्यू परफ्यूजन हम उसको मेंटेन अगर कर देते हैं तो ये भी मैनेजेबल है जोन ऑफ स्टैसिस कंडीशन में, ठीक है। देन ये जो इरिवर्सिबल कंडीशन होता है वो भी कहीं ना कहीं रिवर्सिबल हो सकता है अगर हम जोन ऑफ स्टैसिस में अगर हम टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन कर ले। तो द मेन एम ऑफ द बर्न ऑफ resuscitation इज टू इंक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन। अगर हम बढ़ा लेते तो ये प्रिवेंटेबल हो जाएगा ऑफ एनी डैमेज बिकमिंग इरिवर्सिबल। फर्दर ऑन सच एज प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, इन्फेक्शन और इडिमा कैन कन्वर्ट दिस जोन इनटू एन एरिया ऑफ कंप्लीट टिश्यू लॉस। अगर हम लोग इसमें मैनेज नहीं करें, अगर हम लोग जोन ऑफ कोगुलेशन में टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन नहीं करें, सॉरी, अगर हम लोग जोन ऑफ स्टैसिस में अगर टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन नहीं करें, तब पेशेंट क्या होता है, क्रिटिकली इल। फर्दर ऑन पेशेंट क्या होता है, डिटोरिएट करता है और पेशेंट डेथ हो जाता है, ठीक है। तो जोन ऑफ स्टैसिस फिर भी मैनेजेबल, अगर पेशेंट को हम लोग ठीक से फिर भी लुकआउट करें, वॉच आउट करें, पेशेंट को मैनेज करें, फिर भी पेशेंट रिकवर हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। बट जोन ऑफ कोगुलेशन में क्या होता है, जोन ऑफ कोगुलेशन में ये इरिवर्सिबल स्टेज है, ठीक है। यहाँ से पेशेंट को हम फिर से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। दिस ऑकर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डैमेज हो गया है इन केस ऑफ जोन ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। तो इन दिस जोन देयर इज इरिवर्सिबल टिश्यू लॉस। यहाँ पे टिश्यू जो लॉस होता है उसको फर्दर ऑन टिश्यू परफ्यूजन अगर मेंटेन भी कर दे, बॉडी फ्लूइड अच्छे से दे करके, मान लो फ्लूइड दे करके, फिर भी यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट इज अंडर द जोन ऑफ